بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایپیکس کمیٹی کی بڑی اہم میٹنگ آج پشاور میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک اور میجر آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا. آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نے ضرب عضب کی بات کی, رد الفساد کی بات کی. دو معاملات ہیں اس میں جو اہم ہیں. ایک تو یہ جو آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور پھر جو اے پی سی کی ہوگی, آل پارٹیز کانفرنس. بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے دونوں میٹنگز میں پی ٹی آئی کو, جو کہ میجر پارٹی ہے ملک کی اور میجر اپوزیشن پارٹی ہے, لائک پرہیپس دا اونلی اپوزیشن پارٹی, میجر پارٹی پولیٹیکل, ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم نہیں آتے. آپ تو ہمارے خلاف غداری وغیرہ کے کیسز کریں تو ہم کیوں آئیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ آپ کو یاد ہے جب کووڈ ہوا تھا, کووڈ کا معاملہ ہوا تھا, تو اس وقت ماحول اس سے بھی بدترین تھا. یعنی کہ اپوزیشن کے لوگ اندر پکڑے جا رہے تھے, چاہے نیب کیس میں چاہے کس میں. پرائم منسٹر اپنا بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو اندر بند کرنا ہے. بہرحال وہ ایک کٹی کی, اپوزیشن کے ساتھ کٹی کی پالیسی تھی اور ساتھ ساتھ کیسز ویسز بھی چل رہے تھے. اب بہرحال کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ کوئی اور نیب کنٹرول کر رہا تھا اس وقت, وہ کہتے تھے ہاں ہم کریں گے جو کرنا ہے, اور نیب اینڈ سون. تو اس ماحول میں, اور یاد رہے کہ اس وقت انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, دونوں نے جب پہلا سیشن ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اوپننگ ڈیز میں کہ جی پارلیمان کے فرام دا فلور کہ جی آئیے ہم مل کے چارٹر آف اکانومی بناتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا اپنا ایک ویو تھا. تو یہ ماحول بہت خراب تھا, لیکن اتنا بڑا چیلنج آیا تو بلاول بھٹو نے کیا کہا کہ یو آر مائی پرائم منسٹر اینڈ وی ول فالو یو. اور پھر جب پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے اے پی سی بلائی آن کووڈ, تو سب جا کے سب نے اٹینڈ کی, ورچوئل تھی, سب نے اٹینڈ کی. یہ بھی کر سکتے تھے کہ کہتے نہیں آتے ہم, آپ نے ہمارے ساتھ اے بی سی ڈی کیا, بٹ اینی وے اٹ واز اے نیشنل کرائسس. وہ پہنچے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کی اور وہ چلے گئے. وہ انہوں نے نہیں انتظار دیکھا, اور بلاول بھٹو اور آصف علی اور شہباز شریف صاحب, ان کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں تھا. اور وہ بہرحال اٹ واز ہارڈلی این اے پی سی وین دا پرائم منسٹر لیفٹ. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو آج شکایت کر رہی ہے, یہ ان کا ایک خود انہوں نے کیا کیا تھا. اور ساتھ ساتھ آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ اس وقت جب میٹنگز ہوتی تھیں اور جب پریس کانفرنسز ہوتی تھیں, تو پی ٹی آئی کے لوگ خوب زوروں شوروں سے سندھ گورنمنٹ کو برا کہتے تھے, اس کی تنقید کرتے تھے, بیکاز دیٹ واز دین دی اونلی اپوزیشن گورنمنٹ دے ہیڈ, باقی ان کی اپنی گورنمنٹس تھیں. تو اس وقت جب یہ حکومت میں تھے ان کا کیا رویہ تھا. لیکن چلیے آپ کہہ دیں وہ سیاست ہے جو بھی ہے آج. اور پوائنٹ از کہ جب آپ نے بلایا تو یہ لوگ تو آ گئے تھے, اپوزیشن کے لوگ, اس وقت کی اپوزیشن کے لوگ. اور جب بھی این سی او سی ہوتی تھی اس میں بھی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی. اچھا, آج پھر جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کیا کہا, کل جب ان کو انویٹیشن ملا انہوں نے کہا جی جو کے پی وہ گلگت بلتستان ہے وہ ہمیں ریپریزنٹ کر دے گا, وہ ہماری گورنمنٹ سے وہ ریپریزنٹ کر دیں گی, آپ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں. یہ کہنے دیجیے گا ہمیں کہ اگر کے پی کے میں جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں اگر چلے جاتے, یہ چلے جاتے, اسد قیصر صاحب چلے جاتے, اور اگر جو انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت کے پرویز خٹک صاحب وہ چلے جاتے آج میٹنگ میں, تو کیا ہوتا, کیا کہا جاتا, کیا کہا جاتا کہ پی ٹی آئی نے ہار مان لی ہے. کیا کہا جاتا کہ پی ٹی آئی بہت ڈرپوک ہے,
क्या कहा जाता कि पीटीआई तो अपनी पार्टी की दुश्मन है, या ये कहा जाता कि पीटीआई को तो केपीके के लोगों की परवाह नहीं। हरगिज़ नहीं, ये न कहा जाता। ये कहा जाता कि देखें किस पाए के ये लीडर्स हैं, देखें ये किस पाए के सियासतदान हैं। ये रद्द अमल में नहीं फंसे हुए, ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं फंसे हुए। ये समझते हैं कि जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान का मामला है। और जैसे शंदाना गुलजार इनकी अपनी पार्टी की कह चुकी हैं MNA, शंदाना साहबा ने कहा कि जी ये 2 प्रोविंसेस हैं जब सबसे जहाँ गड़बड़ हो रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान। तो भाई आप क्यों नहीं गए मीटिंग्स में, क्यों नहीं गए, वजह क्या है? ये बहुत ही नैरो माइंडेड रिएक्टिव रद्द अमल की सियासत है। बहुत बुरा कह रहे हैं हम इनको, हुकूमत को, जो इसको पकड़ धकड़ ये वो, और ये आप हम सब इधर बैठे हैं, इस पकड़ धकड़ से फ़ायदा नहीं होना कोई PMLN को, PTM को, कोई इनको ज़्यादा वोट नहीं मिल जाने, कोई इनकी हुकूमत पक्की नहीं हो जानी, कोई इनकी पॉलिसी ज़बरदस्त नहीं हो जानी। वो तो है ही गलत उनका जो तरीक़ा है, या वो है या जो करवा रहे हैं इनसे। लेकिन ये तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में मामलात हैं। आप जानते हैं, आपने तो 10 साल केपीके को चलाया है, केपीके के प्रोविंस को चलाया है। और अगर सवाल ये उठ रहा है कि जी आपने क्यों आए, ये लोग क्यों लेके आए, कोई 20,000 कहता है, कोई 40,000 कहता है, क्यों आप लेके आए, ये क्यों पॉलिसी अप्रूव की गई, जो कि फ़ौज कहती है, जो कहा जाता है कि जी जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने और इमरान खान साहब ने मिल के ये अप्रूव की पॉलिसी। ये किसी काबीना में अप्रूव तो नहीं हुई थी, वहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स होती थी उस वक्त। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिसी आपने ऐसी बनाई जिसके नतीजे में देखिए कि क्या हुआ, हर एक को पता है कि कहाँ से ये आए हैं लोग और कहाँ ये स्प्रेड कर गए। तो तनकीद को आप उसका सामना करें, उसका जवाब दें। उसका तो जवाब बाद में बहरहाल उठाया जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जितना पैसा दिया CTD को तो किधर पैसा चला गया, अब क्या कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को बार बार, वो भी बात कुछ बड़ी अजब लगती है इस मौके पे। इस मौके पे तो यू हैव टू कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। चलें, कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपको एपेक्स कमेटी में बुलाया जा रहा था PTI की लीडरशिप को कि आए और आके आप ज़ुबान बंद करके बैठें। बुलाया जा रहा था कि आप बोलिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बहुत अफसोस की बात है, ये पॉलिटिक्स है फ्यूचर की, ये इनलाइटेंड पॉलिटिक्स है, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है। तो ये हो गया PTI। अच्छा, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया है, सॉरी इमरान खान साहब को बुलाया गया है PTI के चेयरमैन को 7 तारीख को। आए, हिम्मत करें, विजडम, समझ बूझ सुलझी हुई बात करें, लीडरशिप की बात करें, स्टेट्समैन बने। ये इसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप, इसको कहते हैं पॉलिसीज, इसको कहते हैं कि दूरअंदेशी का मुजाहरा करना। इस असेंबली से निकल जाएं, इसको तोड़ दें, इसको कर दें, ये दूरअंदेशी नहीं है। चलें, आपकी अपनी मर्जी है, आपने किया, आपने आइन में रह के किया जो किया। आप असेंबली से निकले, फिर आप असेंबली में वापस जाना चाह रहे थे, फिर देखिए क्या हुआ। अब आप कह रहे थे हम पार्लियामान में जाके हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर अब आपने एफिडेविट दिया कि नहीं लड़ेंगे, तो यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ। ये आपने कह दिया कि 7 को नहीं अटेंड करेंगे। सोचें इस पे, 7 तारीख को आप आए और आके अपनी बात करें, अपनी पोजीशन लें। यू हैव द प्लेटफॉर्म, यू हैव द कंट्रीज आइज एंड ईयर्स। लोग सुनेंगे, आप बात करें आके और मिलके चलें। आप
आपको बहुत कंट्रोवर्शियल कहा जाता था उस वक्त जब आप प्राइम मिनिस्टर थे और आपने कोविड की बात की थी। क्या कहा था उस 35 साल, उस 33 साल के लड़के ने, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो? उसने कहा था यू आर माई प्राइम मिनिस्टर, और सिलेक्टिव भी उसी ने नाम डाला था, लेबल दिया था। लेकिन उसको समझ थी उस वक्त कि कितना बड़ा ये एक मामला है। तो आप भी करें, आप भी सोचें, आप में हिम्मत है, आप में अज़म है, आप ज़रा बुर्दबारी का मुजाहरा करें। अटेंड द मीटिंग। बॉयकॉट में क्या रखा है और ABCD को अपने बिहाफ पे भेजने में क्या रखा है? स्पाइन अप, पॉलिटिकली स्पाइन अप एंड गो। ये बॉयकॉट से क्या रखा है? क्या रखा है? जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कह दिया था एक दफ़ा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को बॉयकॉट करके, उन्होंने कहा था दिस इज द वर्स्ट थिंग, दिस इज द लास्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू। आप भी उतना ही चाहते हैं, PTI भी उतना चाहती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो। कम एंड प्ले योर रोल। अब ज़रा चलते हैं, ये जो पॉलिसी बनने जा रही है, ये हम सुन रहे हैं 2 रोज़ से 3 रोज़ से बात ऑपरेशन की हो रही है, बार बार ऑपरेशन की हो रही है। ये मत करें, ये एक लीनियर पॉलिसी नहीं बननी। ऐसी पॉलिसी नहीं बननी कि जिसमें आप कहेंगे जी ठोक ठाक की बात है, यानी कि यूज़ ऑफ फोर्स की बात है के लिए नहीं। आपने पॉलिसी बनानी है तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है। इसमें व्हाट इज़ द पॉलिटिकल डायमेंशन, डिप्लोमेटिक डायमेंशन क्या है, काइनेटिक क्या है, नॉन काइनेटिक क्या है, इंटेलिजेंस का क्या है, सूबों का क्या है रोल, फोर्सेस का क्या रोल है, और लीडरशिप किसकी है? सिविलियन लीडरशिप है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। जो इनपुट होगा फौज का और एजेंसीज का, वो एक डायमेंशन का होगा। आपने देख लिया है करके 16 आपने किए, मुआहदे किए, उसमें से क्या निकला? जो आखिरी जो एक्शन था, जो आखिरी डिसीजन थी, उनको लाके सेटल करना, वो उसमें से क्या नतीजा निकला? तो ये बार बार हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये ना करें कि जी ठीक है एक और हम ऑपरेशन लेके आ रहे हैं। दैट इज़, वो एक डायमेंशन है। ज़रूर चाहिए ऑपरेशन, ज़रूर बज़रूर आप ऑपरेशन करें, आप ऑपरेशन को क्लियर करें, उसको क्लियरेंस दें, गो अहेड दें, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पॉलिटिकल माइंड्स विल हैव टू सिट डाउन ऑल्सो, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, और इसका एक पूरा खाका बनाएं। आप कह रहे थे कि जी हम जी देखें, दुनिया मानती है कि हम एक पाकिस्तान है जो जीता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ठीक है, सही बात है, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये किया। लेकिन ये भी पूछें अपने आप से कि क्यों हुआ है ये अप एंड डाउन साइकिल क्यों चलती है? आप एक चीज़ को मजबूती से, जो आपकी जीत है उसको मजबूती से थाम क्यों नहीं पाते? वो हाथ से निकल क्यों जाती है रेत की तरह? क्योंकि ब्लंडर्स कमिट होते हैं। तो इस मर्तबा खुदारा पॉलिसी बनाएं, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं, लीड करें इसको सिविलियंस, इनपुट मेजर हो जो सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनका। तो ये बस ऐसे नहीं कि आपने APC बुला ली और उसमें सब अपनी तकारीर करके चले गए और पॉलिसी बनी तो जैसे मर्जी बनी। सोच समझ के आगे बढ़ें, बड़ा ज़रूरी है। और फिर PTI को आखिर में हम फिर से कहते हैं कि अगर आप एक मैच्योर लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहते हैं तो आप आके APC में पार्टिसिपेट करें, इसमें हिस्सा लें। APC में आने से फिर आखिर में हम रिपीट करते हैं, आपकी साख बढ़ेगी, आप ना हारेंगे, ना आपकी वजह से, आपके आने की वजह से कोई PDM ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। अगर कोई स्ट्रेंथन होगा तो मुल्क स्ट्रेंथन होगा।
ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.